अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम तो इस्लामी लगता है, लेकिन जिसके काम सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ रहे, और उसका नाम है अल-कायदा। To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. इस ग्रुप का आगाज़ 1988 में हुआ जब यूएसए ने अफगान जिहाद के दौरान ओसामा बिन लादेन और दूसरे फाइटर्स को फंडिंग और ट्रेनिंग दी। हकीकत ये है कि अलकायदा एक अमेरिकन प्रॉक्सी थी जो पहले यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल हुई और बाद में इस्लाम को बदनाम करने के लिए चलाई गई। इसके ज़्यादातर ऑपरेशन मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ थे। ये कहना कि अलकायदा सिर्फ कुफ्फार पर अटैक करता है झूठ है। हकीकत यह है कि इस ग्रुप का ज़्यादा अटैक्स मुसलमानों के खिलाफ ही हुए। 2002 में डैनियल पल के कत्ल में एक जूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था लेकिन पाकिस्तान को इंटरनेशनली तौर पर बदनाम करने का जरिया बना। 2007 में बक्कर में ब्लास्ट हुआ जिसमें 20 मुसलमान शहीद हुए, इसकी जिम्मेदारी भी अलकायदा ने ली। 2008 में इस्लामाबाद मैरियट होटल बॉम्बिंग होती है जिसमें 54 लोग शहीद हुए, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी मुस्लिम थे। 2010 में लाहौर श्राइन अटैक्स यानी दाता दरबार पर अटैक हुआ जिसमें 50 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए, इसकी जिम्मेदारी भी अलकायदा ने ली। 2013 में कोयटा ब्लास्ट हुआ जिसमें हज़ारा शिया कम्युनिटी को टारगेट किया गया, 90 मुसलमान शहीद हुए, अलकायदा ने इसकी भी जिम्मेदारी कबूल की। तो इसके ज़्यादातर अटैक्स मुसलमानों पर ही होते हैं और नाम लेते हैं ये इस्लाम का। So this is going to sound like the craziest thing ever, okay? But what the Indians and the Taliban are doing, I kid you not, is India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God. Yeah, I know this leaves so many questions, but yeah, so they've been doing all these hits. So they've been killing all these Kashmiri militants. They've been killing a bunch of Sikh militants. I don't know anything about the Sikh part, so if anyone's interested in that part, I've only looked at the Kashmiri piece. So yeah, so they're using, they say the Taliban networks, and then they're doing these assassinations. They're happening all over Pakistan, like in Lahore and Karachi and etc. 9/11 अटैक्स जिसमें 3000 लोग मारे गए, अलकायदा पर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक इनसाइड जॉब थी। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स का कहना है कि बिल्डिंग कंट्रोल बॉम्बिंग से गिराई गई, ना कि प्लेन क्रैशेस से। अगर ये अटैक भी प्री प्लान्ड ऑपरेशन था तो सवाल ये उठता है अलकायदा को किसने यूज़ किया, किसने मीडिया कवरेज दी, किसने उनके एजेंडा को पुश किया। The idea, first of all, of Islamic terrorism was invented by Zionist intellectuals. In particular, the first place this had a major public showing for the first time was a conference in 1984 in Washington, D.C., organized by a certain Benjamin Netanyahu. And the idea there, this is one of the earliest appearances of the idea, was that there's a specifically Muslim form of terrorism, that Muslims are particularly predisposed. सवाल ये उठता है आज तक अलकायदा ने इस्लाम के लिए क्या किया है? क्या ये हॉस्पिटल्स बनाते हैं? क्या ये स्कूल्स चलाते हैं? क्या ये कुरान के पैगाम को पहुंचाते हैं? तो जवाब है नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों को शहीद करते हैं, खुद कुछ हमले करते हैं, मीडिया पे इस्लाम को रेडिकल इस्लाम जैसे लफ्ज़ों से जोड़ते हैं और आम बंदों पर टारगेट किलिंग जैसे अटैक करते हैं। ये लफ्ज़ रेडिकल इस्लाम भी इन्हीं के खुदकार दहशतगर्द ठेकेदारों ने बनाया है, जैसे उसामा बिन लादेन, उसामा ज़हवारी, बगदादी, ताकि इस्लाम को दुनिया के सामने एग्रेसिव और वायलेंट दीन बनाकर पेश किया जा सके। अलकायदा का एक विंग पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना, जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी, स्कूल्स और मसाजिद पर अटैक किए। 2014 के APS अटैक में 150 बच्चे शहीद हुए। क्या ये इस्लाम है? अलकायदा का दूसरा विंग सीरिया और इराक में मौजूद है जिसका नाम है ISIS यानी दाइश। ISIS ने शिया सुन्नी, औरत मर्द सबको नहीं छोड़ा, अपनी ही मुस्लिम उम्मा को कत्ल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में या इस उम्मत के अंदर से एक कौम निकलेगी जिनकी नमाज़ों को देखकर तुम अपनी नमाज़ों को छोटा समझोगे। वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 6930, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1064। यही खवारिज थे और यही आज के अलकायदा, TTP और ISIS हैं। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ एक अमन का दीन नहीं बल्कि एक इंसाफ का दीन है। जो हक के नाम पे झूठ बोले, कत्ल करे और काफिरों से पैसा लेकर मुसलमानों को शहीद करे, वो इस्लाम का नहीं, वो फितने का एजेंट है। अलकायदा सिर्फ एक प्रॉक्सी है, एक प्रोजेक्ट है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। हमें यह समझना होगा कि दीन को समझाने और डिफेंड करने का तरीका इल्म, इंसाफ और हुज्जत है, ना कि बारूद और खून।